منبر رسول پہ جلوہ بار علماء ذویل احترام، محفل رسول میں حاضر باش سنی مسلمانوں السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم و خطابہ القدیم، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ہے نا؟ ویسے خالی زبان سے چلاتے رہو ہو تو کیا ہونے والا ہے؟ آواز ادھر سے نکالو گے تو ادھر سن لی جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے۔ اعلیٰ حضرت آگے کیا فرماتے ہیں وہ سنو گے آپ؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ ذرا سا آواز بھی نکال دو تھوڑی سی۔ ہاں وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں بتاؤں؟ مومن ہے وہ جو ان کی، مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، مرے دل سے۔ تو مرے دل سے نہیں کرنے کا، مصطفیٰ کا نام آئے تو چہرہ مسکرا جائے، یہی تو ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایمان تو یہی ہے بھائی کہ جب محبوب کا نام آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، چونکہ وہ محبوب ایسے ویسے محبوب نہیں ہیں، محبوب تو اوروں نے بھی بنایا ہے۔ کہیں کہ جس کو ہو جانو دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں، ہاں وہ نہیں وفا پرست۔ آیا دوسرا مصرع یاد؟ علماء کی توجہ۔ ہاں وہ نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ ایک یہ بھی محبوب بنایا ہے، محبوب کے گلی میں جانے ہی سے ڈرتا ہے کہ کہوں مر ہی نہ جائی، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، وہاں جانے سے گھبراتا ہے۔ ایک اعلیٰ حضرت ہیں، ہائے ہائے ذرا بریلی جائیے امام کی بارگاہ میں اور پوچھئے آپ کی کیا رائے ہے، آپ نے کس کو محبوب بنایا؟ تب اعلیٰ حضرت کہیں گے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہا ہے تیری گلی میں جائے کیوں، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تیرے گلی سے جائے کیوں۔
फर्क समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं और से का फर्क अल्लाह समझता फरमाए। तो ईमान तो यही है, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। समझ रहे हैं आप? ईमान वही है। अल्लाह ताला हमें जो आला हजरत ने बताया है उसी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आओ देखो, थोड़ी सी बेदारी हुई तो तवज्जो मेरी तरफ रहे। मैंने जो आयत तिलावत की, अगर आप अपने जानों पे जुल्म कर लें तो महबूब की बारगाह में चले जाएं। कुरान फरमाता है कुछ गलती हो जाए तो माफ़ी के लिए महबूब की बारगाह में जाओ। ए मौला, गलती तेरी है, तू भी तो माफ़ कर सकता है, तू मालिक है, खालिक है, माफ़ तो तू ही करेगा, तो वहाँ क्यों जाए? हाय हाय, ये निज़ाम कह लीजिए अंदाज़े कलाम इलाही, तर्ज़े कलाम मौला ये बता रहा है कि डायरेक्ट आएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, महबूब के यहाँ जा, वहीं से होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ से होके आ, वहाँ से होके आ, तब यहाँ सुनवाई होगी। यही तो आला हजरत जिंदगी भर बताते रहे, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए। मैंने जो आयत तिलावत की उसके ताल्लुक़ से मैं गुफ्तगू आपके सामने करने जा रहा हूँ, जहन हाजिर फरमाइएगा। मेरे सरकार मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस है। सरकार की अज़मत क्या है जो हमें हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया है। कुरान में एक आयत है, देखिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह से कहा था, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, ए नूह, हम आपको खुला गुमराह समझते हैं। माज़अल्लाह, उनकी कौम ने उनसे कहा था, बदज़बानी की, कुरान में मौजूद, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, ये बदज़बानी किया नूह से उनकी कौम ने। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या कौमी लैसा बी दलाला वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, ए मेरी कौम, मेरे अंदर गुमराही नहीं, मैं तो अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जवाब नूह ने अपनी कौम को दिया था जब उन्होंने ये बात कही। अच्छा, एक बात आपने सुन ली, अब आगे सुनिए। हजरत हूद से उनकी कौम ने कहा, क्या कहा? हूद से उनकी कौम ने कहा, क्या कहा? इन्ना लनराका फी सफाहतिन व इन्ना लनजुन्नुका मिनल काज़िबीन, ये बदज़बानी उन्होंने किया। ए नबी, हम आपके अंदर बेवकूफ़ी देख रहे हैं और आपको झूठा समझ रहे हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये उनकी कौम ने कहा था। तब हजरत हूद ने जवाब दिया, या कौमी लैसा भी सफाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, ए मेरी कौम, मेरे अंदर सफाहत नहीं है, मैं तो अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। सुभान अल्लाह। उन्होंने जवाब दिया था, जब नूह की कौम ने बदज़बानी की तो नूह ने जवाब दिया, जब हूद की कौम ने बदज़बानी की तो हूद ने जवाब दिया। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई अहमद मुख्तार की, जब बारी आई कौनैन के ताजदार की, तब जानते हैं आप, कुफ़ारे मक्का ने कहा, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रा इन्नका लमजनून, ऐ वो जिस पर कुरान उतारा गया, आप तो मजनून हैं। महबूब जवाब देना ही चाह रहे थे, इतने में मौला ने आवाज दिया, ए महबूब, आप न जवाब दो, मैं जवाब दूंगा। महबूब ने कहा, ए मेरे मौला, नूह से जब बदज़बानी की गई तो नूह ने जवाब दिया, हूद से बदज़बानी
भविष्यवाणी की गई तो हूद ने जवाब दिया, मूसा को कहा गया तो मूसा ने जवाब दिया, मैं क्यों ना जवाब दूं। आवाज आई, ए महबूब तुम मूसा की तरह नहीं, तुम नूह की तरह नहीं, तुम इब्राहिम की तरह नहीं, तुम खलील की तरह नहीं, सब नबी है, तू इमामुल अंबिया है, तू मेरा महबूब है। सुभान अल्लाह। ए महबूब तेरा कद तो नादिर दहर है, सुभान अल्लाह। तुम तो बेमिसलो बेमिसाल हो, महबूबियत कुबरा तुम्हें हासिल है। महबूब आप खामोश रहो, जवाब मैं दूंगा, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी महबूबियत और क्या होगी, और क्या होगी महबूबियत कुबरा। जरा देखिएगा, मूसा पर एतराज किया गया, उन्होंने खुद जवाब दिया। मौला कह रहा है कि मैं जवाब दूंगा। मौला तू कैसे जवाब देगा। जिब्रील आ गए, नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। नून कलम की कसम, नविश्तहाए मलाइक की कसम, ए महबूब तुम मजनून नहीं है। इन्ना लका लाजरन गैर ममनून, तेरे लिए तो मेरी तरफ से बेपाया अजर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहरबानियां हैं, आप अंदाजा फरमाओ। ये मौला जवाब दे रहा है, अल्लाह जवाब दे रहा है। नबी की अजमत का अंदाजा लगा सकते हो, कतई नहीं। आप और आगे देखिए, जब वही आने में कुछ देरी हुई हजरत, एक मौका आया था, वही आने में कुछ ताखीर हुई, कुफार ने ताना दिया, इन्ना मुहम्मदन वद्दाहु रब्बुहु, बेशक मोहम्मद को उनके रब ने छोड़ दिया। माज़ल्लाह रब्बिल, माज़ल्लाह बोलो जोर से। ये कुफार ने ताना दिया। नबी के चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी आई। इतने में जिब्रील अमी आ गए। महबूब आप जवाब नहीं देना, मैं दे रहा हूं, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील आ गए। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, महबूब तेरे रुखे रोशन की कसम, सुभान अल्लाह। महबूब तेरे जुल्फों की कसम, मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा है। आप अंदाजा फरमाइए मुसलमानों, अल्लाह ताला कसम खा के फरमाता है, नबी के चेहरे की कसम, ए महबूब तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा है। ये बदज़बान है, इन्हें बकने दीजिए, तेरे रब ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। तुम्हारे ऊपर रब की जो मेहरबानियां है, करम है, अल्लाह की इनायत है, उसको देखकर ये हजम ही नहीं कर पाते, जले जाते हैं, जलन में मरे जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ। एक बात और बता दूं, सुनिएगा गौर से। ये अभी जो तकरीर कर रहे हैं हम, 12:15, ठीक, ये 12:15 रात है कि दिन है? आए कस के बोलो, रात है ना? अच्छा रात है। अच्छा दिन में भी 12:15 होते होंगे, ठीक है। तो जब 12:15 रात में है, तो जब रात होंगे 12 बजे के, तो क्या उसी टाइम दिन भी हो सकता है? ठीक एक वक्त में। इज्तिमाए जिद्दैन फी वक्तिन वाहिद, अज़िद्दान ला यस्तमियान फी वक्तिन वाहिद, है ना? बात ठीक है। वो दोनों मुकाबिल हैं, एक आएगा तो दूसरा नहीं रहेगा। दिन आएगा तो रात चली जाएगी, और रात आएगी तो दिन चला जाएगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि रातों रहे और दिन भी रहे। ऐसा हो सकता है? कहीं अब्दुल रहमान कादरी कितने बज रहे हैं? हमने कहा 12। बोले दिन के या रात के? तो हमने कहा दिनों है रातों है, दोनों है। क्या बोले कि दिन भी है रात भी है? तब आप सोचोगे कि कहां से ले आए हैं ये, रात और दिन दोनों एक साथ बता रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया? तो
नहीं होता है ना, रात और दिन एक साथ नहीं होते, लेकिन मेरे मौला की इज्जत की कसम आज इसी मिंबर पर मैं ये बता के जाऊंगा और ये दिखा के जाऊंगा कि देख रात और दिन दोनों एक साथ हैं। जरा जोर से बोलो सुबहान अल्लाह, हाथ उठा के बोल दो। हाँ, ये कमरे की बोली नहीं है, इतना लोग मौजूद है इसी मिंबर पे ये दिखा के जाऊंगा। और मेरे अपने ऊपर नहीं, मुझे मेरे आला हजरत पर भरोसा है, मुझे आकाओं पर भरोसा है, आला हजरत के वालिद गिरामी खातिमुल मुहक्किकीन, सुभान अल्लाह। किताब उनकी सुरूरुल कुलूब बेजिक्रिल महबूब, उसके अंदर देखिए वो लिखते हैं खातिमुल मुहक्किकीन। जरा देखिए कितनी प्यारी बात है, बुजुर्गों की तहरीर है, वाकई पढ़ो तो दिल खुश हो जाता है। अभी जब अल्फाज हम बोलेंगे तो आप खुद समझ आएंगे ये इसका नहीं है, ऐसे अल्फाज उन्हीं के होंगे। लिखते हैं शहबाज़े फिक्र इस जगह हैरत में गिरफ्तार है, शहबाज़े फिक्र इस जगह हैरत में गिरफ्तार है कि आप माहताब सुंबुला में जा सकता है और अब्र कौन आ गया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबीरे आला हजरत, हुजूर जमाले मिल्लत, आमदे हुजूर जमाले मिल्लत, आमदे हुजूर जमाले मिल्लत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म, फैज़ाने मुफ्ती आज़म, हुजूर जमाले मिल्लत, आमदे हुजूर जमाले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तशरीफ खड़े होके बोल रहा हूँ। अच्छा जी, तो थोड़ा उधर से बैठ जाइए, आप लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ जाइए। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं गुलशन रज़वियत का एक महकता हुआ फूल, एक गुले खुशरंग आपके जलसे में और आपके बीच में तशरीफ़ लाया है। इनको देखिए और इनसे आला हजरत का फैज़ान लीजिए, सुभान अल्लाह। और इन्हीं के करम और दुआओं से बस थोड़ी सी हमारी बात भी सुन लीजिए। उसके बाद फिर हजरत के कलिमात खैर होंगे और नासिहाना कलिमात, दुआया कलिमात पर प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। आला हजरत का सुन्नियत पर वो एहसान है जिसको बयान नहीं किया जा सकता, बदला देना तो बहुत दूर की बात है। उसी घराने के शहजादे हमारे बीच में मौजूद हैं। अब आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और थोड़ी सी हमारी बात सुन लें। मैं बात जो कर रहा था, जो हवाला पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसी बीच में हजरत भी आ गए। खातिमुल मुहक्किकीन आला हजरत के वालिद गिरामी का हवाला पेश किया था मैंने, सुभान अल्लाह। सुरूरुल कुलूब बेजिक्रिल महबूब, उसके अंदर लिखते हैं शहबाज़े फ़िक्र इस जगह हैरत में गिरफ्तार है कि माहताब सुंबुला में जा सकता है और अब्र आफताब पर आ सकता है, मगर यहाँ तुरफा माजरा है कि रात और दिन यकजा है। लिखते मैंने कहा था ना मैं दिखा के जाऊंगा, ये देखिए अपने घर से नहीं, आला हजरत के वालिदे गिरामी के यहाँ से, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। फरमाते हैं ये तुरफा माजरा है कि यहाँ रात दिन यकजा है। मैंने पूछा मेरे सरकार कहाँ रात और दिन यकजा है? रात है तो दिन नहीं, क्यों दिन है तो रात नहीं, दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। आप तो लिख रहे हैं, हैरत ये है कि यहाँ रात और दिन यकजा है। हमने कहा कहाँ यकजा है? बोले देखता नहीं कुरान फरमाता है वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला, रात जब छा जाए और दिन जब रोशन हो जाए। बोले रात से मुराद जुल्फ़े मुस्तफ़ा और दिन से मुराद चेहरे मुस्तफ़ा है, चेहरे मुस्तफ़ा है। नबी का चेहरा देख लो, रात भी है दिन भी है। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म, हुजूर जमाले मिल्लत। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। यहीं पे तो गुफ्तगू आई थी। अब आगे चलिए, कुफ़ार ने ताना दिया लस्ता मुरसलन, आप रसूल नहीं हैं। माज़ल्ला, कुफ़ार ने बदज़बानी की, लस्ता मुरसलन, आप रसूल नहीं हैं। महबूब जवाब देना चाह रहे थे, मौला ने कहा महबूब तुम नहीं मैं जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला ने क्या जवाब दिया? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान हकीम की कसम, ए महबूब आप रसूल बन करके आए हैं। आप अंदाजा फरमाओ, अंदाजा फरमाओ। नूह पर एतराज हो तो नूह जवाब दे, मूसा पर एतराज हो तो मूसा जवाब दे, ईसा पर एतराज हो तो ईसा जवाब दे, आमिना के लाल पर एतराज हो तो खालिके कायनात जवाब दे रहा है, मौला जवाब दे रहा है, अल्लाह जवाब दे रहा है। यही है महबूबियत कुबरा, नबी को ये मकाम हासिल है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, आप देखिए आगे चलिए। हज़रत इब्राहीम के किस्से में बताया, ये सब आला हज़रत ने लिखा है। हज़रत इब्राहीम के किस्से में बताया कि युजादिलुना फी कौम लूत, वो हमसे झगड़ने लगा कौम लूत के मसले में, उनसे रफ़े अज़ाब के सिलसिले में। तो कुरान में आया काला या इब्राहीम आरिसन हाज़ा, ए इब्राहीम इस ख्याल में ना पढ़ो, इसमें ना पढ़ो। मौला ने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे मौला इन्न फ़ीहा लूतन, इसमें लूत भी तो मौजूद हैं। जब अज़ाब देने की बात आई तो कहा, अर्ज किया मेरे मौला इसमें लूत भी मौजूद है, माना कि कौम गुनहगार है उनको अज़ाब दिया जाए, मगर इसमें लूत अलैहिस्सलाम भी तो हैं। तो हुक्म हुआ नहनु आलमु बिमन फीहा, हम खूब जानते हैं कि इस बस्ती में कौन कौन है, हम जानते हैं कौन कौन है, फिर भी अज़ाब दे रहा है। हाँ फिर भी अज़ाब दे रहे हैं, लेकिन ज़रा एक वहाँ देखिए और एक महबूब को देखिए। ए मेरे मौला, कुफ़ारे मक्का गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, इनको अज़ाब क्यों नहीं दे रहा है? यही कुफ़ारे मक्का है जिन्होंने कहा था अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़ फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, कुरान में मौजूद है। सुबहान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ, जब नबी ने बताया कि अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल बन करके आया हूँ, अल्लाह एक है मेरी मानो, तब इन लोगों कुफ़ार ने कहा अगर यही सच है, यही कुरान सच है, यही नबी सच है तो ए मेरे मौला हम पर पत्थरों की बारिश कर दे। कुफ़ार ने अज़ाब मांगा था, पत्थरों की बारिश कर दे। आवाज़ आई अज़ाब तो दे देता मगर कैसे दूँ मेरा महबूब जो तुम में मौजूद है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मा कान अल्लाह जरा देखिए उधर कहा जा रहा है हम जानते हैं कौन है फिर भी अज़ाब देंगे, इधर कहा जा रहा है मेरा महबूब तुम में है कैसे अज़ाब दे दिया जाए। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, ये है मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। आपको बताऊं सरकार के एक साहबजादे का इंतकाल हुआ तो एक शकी ने कहा अबत्तर यानी नस्ल बुरीदा, सरकार को कहा माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी उसने कहा अब इनका चर्चा कैसे होगा, इनका नाम कैसे चलेगा, कोई तो बचा ही नहीं है। मौला ने कहा ए महबूब मैं जवाब दे रहा हूँ, इसको क्या पता
कि नाम चलने के लिए औलाद की ज़रूरत नहीं है। ना जाने कितने औलाद वाले हैं जिनका नाम तक कोई नहीं जानता। और महबूब तेरा डंका तो अर्श पर भी बचेगा, फर्श पर भी बचेगा, ता क़यामत बचेगा। आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। महबूब तुम्हारा डंका बजता रहेगा। अल्लाह फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ए महबूब, हमने तुम्हें खैर कसीर अता कर दिया। और अबतर नस्ल बुरीदा तुम्हारे दुश्मन है, तुम नहीं हो। ये रब का करम देखिए, रब का करम देखिए। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए और नबी की मोहब्बत में उठाए। आगे चलिए, मैंने आयत तिलावत की, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। अगर अपने जानों पे जुल्म कर लो तो कहाँ चले जाओ? महबूब की बारगाह में। कहाँ? महबूब की बारगाह में। नबी तुम्हारे लिए सिफारिश करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह माफ़ फरमा देगा। कह दो सुबहान अल्लाह। लोग ये कहते हैं वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, हम वहाँ नहीं डायरेक्ट जाएंगे। ऐसा बोलते नहीं बोलते? आए उनसे बोलो मैदान महशर में पता चलेगा डायरेक्ट वाले, जब ये कहा जाएगा कि पहले बताए थे कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल ना मानेंगे, क़यामत में अगर मान गए आप। अल्लाह ताला हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए। ये आयत भी ये बता रही है कि मेरे नबी को अल्लाह ने मुख्तार बना के भेजा है, ताकत वाला बना के भेजा है, पावर वाला बना करके भेजा है। आला हजरत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए। एक तारीख आला हजरत ने अल अमनो वल ओला में नकल फरमाया है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, वो सुनिएगा। हजरत अली से रिवायत और भी इसके अलावा किताबों में, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 30 में भी मौजूद है। ठीक है, अल अमनो वल ओला तो मेरे पास यहीं मौजूद है। ठीक, अल अमनो वल ओला मेरे पास यहीं मौजूद है, वो आप कभी भी देख सकते हो। ठीक, हाँ, लेकिन अब हर एक के बारे में मत पूछिएगा, यही खाली मेरे पास है, जो होगी वो बता देंगे कि ये मेरे पास है। ठीक, आला हजरत उसमें बताते हैं, लिखते हैं कि एक आराबी आए, सहाबा बैठे हुए थे और आकर के बोले कि या रसूल अल्लाह, कुछ मांगना चाहता हूँ, कुछ सवाल है। अच्छा, मांगना क्या, जब वो मुख्तार हैं तो मांगा तो उन्हीं से जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले कुछ मांगना चाहता हूँ। हजरत अली फरमाते हैं कि सरकार की आदत ये थी कि देना होता था तो अता कर देते, और नहीं देना होता तो ला नहीं फरमाते, नहीं फरमाते, खामोश रहते। तो इसने कहा मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, तो नबी खामोश थे। फिर इसने कहा कुछ मांगना चाहता हूँ, नबी फिर भी खामोश। फिर कहा कुछ मांगना चाहता हूँ, नबी ने झिड़कने के अंदाज में कहा सलमा शियता या आराबी, मांग, क्या मांगना चाहता, मांग। झिड़कने के अंदाज में नबी ने फरमाया। तो हजरत अली फरमाते हैं, चूंकि रिवायत उन्हीं से है, हजरत अली फरमाते हैं फगबतना अल आन यसअलुल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले हमको रश्क आ गया, नबी के ऐसा फरमाने पर रश्क आया कि अब तो ये जन्नत ही मांगेगा। सुभान अल्लाह। जब फुल इजाजत मिल गई, जो मांगना चाहता है मांग ले, तो हमें रश्क आया कि अब तो ये जन्नत ही मांगेगा, क्योंकि मालिक जन्नत कह रहे हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। तो वो बोले कि अल आन यसअलुल जन्ना, हमें रश्क आया कि अभी ये जन्नत ही मांगेगा। मगर जब उसने मांगा तो जानते हैं क्या मांगा? उसने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे सफर करना है, सवारी के लिए एक ऊंट चाहिए। नबी ने कहा दिया। उसने फिर कहा या रसूल अल्लाह,
सफर के लिए ज़्यादा राह चाहिए, नबी ने कहा ये भी अता किया। हजरत अली कहते हैं हम सोचने लगे देखो क्या मांग रहा है, क्या मांगना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुराए, नबी फरमाते हैं ए सहाबियों जरा इसकी मांग को देखो। हाय हाय, ये कौन कह सकता है? नबी खुद सोच रहे इतनी बड़ी बात मैंने कह दी, जो मांगना है मांग ले। तो मांग रहा है खाना, ऊंट मांग रहा है। अरे जन्नत क्यों नहीं मांग लिया? कह दो सुभान अल्लाह। मालिक जन्नत मौजूद है। मेरे नबी ने सहाबा से कहा ए सहाबियों इसकी मांग को देखो। और बनी इसराइल की वो बूढ़ी औरत थी, उसकी माँ को देखो, वो कितनी चालाक थी। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो बूढ़ी औरत कौन? मेरे आका ने फरमाया जब अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि दरिया पार कर जाओ, दरिया के पास गए, अचानक सवारियों का मुंह मुड़ गया, वो पीछे हटने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा मामला क्या है, मामला क्या है? मूसा ने मौला की बारगाह में अर्ज किया ए मेरे मौला ये सवारियाँ काहे मुड़ रही हैं? कहा यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाशे मुबारक एक ताबूत में है, उसको लेकर के साथ में जाओ, तब सवारियां जाएंगी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो ताबूत का और उनके कब्र का पता नहीं था, तो उन्होंने काफिले में पूछा ये बताओ कि कहाँ है उनकी कब्र, वो ताबूत कहाँ है? तो सबने कहा हमें नहीं मालूम। कुछ लोगों ने कहा वो बूढ़ी है, बहुत बूढ़ी, वही बता सकती है अगर उसको मालूम होगा। उसके पास मूसा अलैहिस्सलाम गए और उससे पूछा ये बता कि वो ताबूत तुझे मालूम है? उसने कहा हाँ हमें मालूम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बता वो ताबूत कहाँ है? तो बूढ़ी कह रही अल्लाह वल्लाह हत्ता तुअतियनी मा असअलुक, कसम है रब्बे काबा की मैं नहीं बताऊंगी जब तक कि आप मुझे वो ना दे दें जो मैं आपसे मांगूं। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता तो दूंगी लेकिन पहले जो मैं मांगूं वो दे दीजिए। समझ रहे ना बात को? समझ रहे बात को? तो हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो मांगूं वो दे दीजिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये क्या मांगेगी? कुछ ऐसे काम की चीज मांगेगी अपने? तो बोले कि मांगो, क्या मांगती हो? मैं देने के लिए तैयार हूं, कबूल है मुझे। तो उसने कहा देने के लिए तैयार है? तो मूसा ने कहा बोलो तो क्या मांग रही हो? फ़क़ालत इन्नी अस्अलुका अन अकूना फी दरजतिल्लती तकूनु फीहा फिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बोलते हैं ना कि वो टंगे पजामे वाला बहुत अरबी जानता है, थोड़ा ये भी सुन ले। हाय हाय हाय, इधर देख इधर। हाँ आला हजरत ने क्या सिखाया है, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी आता है, बुखार उसको बुखारी नहीं आती। समझे आप? सुनिए फरमाती उस औरत ने कहा फ़क़ालत इन्नी अस्अलुका अन अकूना माअका फी दरजतिल्लती तकूनु फीहा फिल जन्नह। ए मूसा मैं ये मांग रही हूं कि जन्नत में जहां आप रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के पीछे वाले बोलो क्या मांगे औरत ने? जहां आप रहोगे। जन्नत खाली नहीं मांगा, जन्नत मांगती तो कोई बात ही नहीं थी। फिर दरजतिल्लती तकूनु फीहा फिल जन्नह, वो दर्जा चाहिए जिस दर्जे में आप रहेंगे। जन्नत में जहां आप रहेंगे वहीं मैं भी रहना चाह रही हूँ, वहीं रहूंगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अरे क्या मांग लिया तूने, इतनी बड़ी चीज मांग ली? दर्जे से क्या मतलब, तुम तो जन्नत में जाओ। मूसा कह रहे सलील जन्नह, जन्नत मांग ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलील जन्नह, जन्नत मांग ले। ये दर्जा क्यों मांग रही है? मैं नबी, तू उम्मती, उम्मती का मकाम और नबी का मकाम और मैं जहां रहूंगा वहां रहने का क्या मतलब, ये क्यों मांग रही है? सुनने बात को।
जन्नत ले ले, तेरा काम हो गया। सलील जन्ना। एक सवाल तो ये है यहाँ पे, ए मूसा आप ये क्यों कह रहे हो कि जन्नत ले ले? सलील जन्ना, जन्नत मांग ले। आप जन्नत देने वाले होते कौन हैं? जन्नत तो अल्लाह देता है। तकरीतुल ईमान वाला लिख के चला गया, जिसका नाम मोहम्मद अली हो, किसी चीज का मालिक हो मुख्तार नहीं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आप जन्नत ऐसे ही बांट रहे हैं। आवाज आई, रहमत इलाही ने पुकारा, मेरा आमिना का लाल तो सबसे बड़े हैं। हजरत मूसा भी जन्नत दे सकते हैं, ईसा भी जन्नत दे सकते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। मेरे नबी की शान तो बहुत ही निराली है। कह रहे सलील जन्ना, जन्नत मांग ले, दर्जा काहे मांग रही है? तो उसने कहा नहीं, मुझे वही चाहिए जो मैं मांग रही हूँ, मैं आपके साथ रहूँगी, बस यही हमको चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे नहीं जन्नत ले ले। वो कह रही नहीं, वही दर्जा चाहिए जिसमें आप रहेंगे। फजाल मूसा युरद्दिदुहा, तो मूसा अलैहिस्सलाम उससे रद्दो बदल करते रहे, यानी वो कहे दर्जा चाहिए, और ये कहे जन्नत ले ले, वो कहे दर्जा चाहिए, ये कहे जन्नत ले ले। यही उलट फेर होती रही बातों की। फ़अौहल्लाहु तआला इला मूसा अन आतिहा, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, ए मूसा काहे नहीं उसे जन्नत दे देते? कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मूसा को फरमाया, ए मूसा जन्नत दे दो, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है, अता कर दो उसे जन्नत। फ़अताहा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जन्नत अता कर दिया। सुभान अल्लाह। मुझे कहने दो, अगर बूढ़ी को मूसा अलैहिस्सलाम जन्नत दे सकते हैं, ईसा जन्नत दे सकते हैं, हजरत कलीम जन्नत दे सकते हैं, खलील जन्नत दे सकते हैं, तो आमिना का लाल भी हम गुलामों को जन्नत अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला हम नबी के सदक़े में जन्नत में जाएंगे। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। अल्लाह ने नबी को मुख्तार बना करके भेजा है, ताकत वाला बना करके भेजा है। एक बात और सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है। तिरमिज़ी में, अच्छा, मुस्लिम शरीफ किताब तौबा के अंदर भी एक रिवायत मौजूद है, लेकिन वो बाद में सुनिएगा। चलिए पहले ये सुन लीजिए। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक रिवायत है, जा आराबियुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल बिमा आरिफ़ु अन्नका नबी। सुभान अल्लाह। वो आराबी आए सरकार की बारगाह में और बोले, ए अल्लाह के रसूल, कैसे मैं जानूं कि आप अल्लाह की नबी हैं? इत्तेफाक से खजूर का एक पेड़ था। मेरे आका ने फरमाया, इन दाऊ तो हाजल इज़्क़ा मिन हाज़िही नख़ला, खजूर के इस पेड़ से उस शाख को अगर मैं बुलाऊं, खोशे को अगर मैं बुलाऊं और वो आके पहुंच जाए तो तू मान लेगा कि मैं नबी हूं कि नहीं? कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, अगर उस खोशे को बुलाऊं मैं, हाजल इज़्क़ा मिन हाज़िही नख़ला। शरह जामी जो नहू की किताब है उसमें लिखा है, अस्माउल इशारत मा वज़िया ले मुशारिन इलैह इशारतन हिस्सियतन, इशारतन हिस्सिया, इसमें इशारा का मुशारुन इलैह मौजूद और महसूस होना चाहिए, इशारे हिस्सिया हो जाए उधर। आप जरा देखिए, ये तब वो खूशा दिख रहा था तभी इशारा किया गया। आज कुछ लोग तावील करते हैं, जब नबी खबर में आएंगे और कहा जाएगा मा तक़ूल हाज़र रजूल, तो वो कहते हैं कि वो हुजूर ज़हनी है, जहन में इशारा किया जाएगा। अरे हक़ ये है, याद रखिएगा, मुहक्किकीन की तहक़ीक़ ये है कि मुशारुन इलैह खारिज में मौजूद महसूस होना चाहिए। यही माने हकीकी है, और अगर यही माने हकीकी है तो इस एतबार से मेरे नबी जहन में नहीं, मेरे नबी का जलवा होगा सामने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कानून जहन में होगा तभी फैसला होगा। ऐसे थोड़ी कुछ भी कह दो कुछ भी मान लिया जाएगा। नो, तहकीक जरूरी है। जो बात बोलो दलील चाहिए उस पर, ठीक है ना? अल्लाह समझ अता फरमाए। बोले, नबी ने फरमाया कि वो उस खोशे को अगर मैं बुलाऊं और वो आ जाए
अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, तो क्या तू गवाही देगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? फ़क़ाल नाम, उसने कहा मैं गवाही दूंगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरे आका ने इशारा किया, उसको बुलाया, फ़जाल इज़्क़ु यंज़िलु मिनन नख़ला, तो वो खोशा वहाँ से टूटा और टूट करके हत्ता सकता इलन नबी, सरकार की बारगाह में आ गया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने उससे कहा इरजे इला मकाने का, अपनी जगह पे लौट जा। फरजा, फिर वो लौट गया, वहीं जाके लग गया। और जब ये देखा आराबी ने, तो आराबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब बताओ ये नबी का इख्तियार है कि नहीं है? ये नबी की ताकत है कि नहीं है? ये नबी का पावर है कि नहीं है? अगर ये पावर नहीं है तो हम इनसे कहते हैं ये तो अपनी बीवी को घर में बुलाता है फलानी, अरे क्या टर कर रहा है, चल बाद में दे देंगे पानी। बोले एक गिलास पानी ले आओ। बोले काहे डिस्टर्ब कर रहा है अभी नींद में? इसका हुक्म इसके घर में नहीं चलता है। तो अब ये जैसे है वैसे तो कहेगा, हाँ बिगड़ा हुआ ये खुद है। अरे तू अपने जैसा ना समझ, आमिना का लाल अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका हुक्म ज़माने पर चलता है, ज़माने पर चलता है। एक बात और बता दूं, ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के निवासे बैठे हुए हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फतावा मुस्तफ़विया में अल मवाहिबुल लदुन्निया व मनह मुहम्मदिया के हवाले से लिखा। क्या लिखा? हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजानतुस्सिर व मौज़ू नुफूसिल अम्र फला यनफुज़ु अमरुन इल्ला मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने लिखा है, नकल फरमाया है वहाँ से। अपने किसी बात पर बहस करते हुए इसका मतलब जानते हैं? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के राजों में से एक राज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राज के खजाने हैं और अम्र के नाफिज होने की जगह है। दुनिया में मौला का कोई हुक्म सादिर नहीं होता है मगर मुस्तफ़ा के दरवाजे से सादिर है। सुभान अल्लाह, नबी ही से सादिर होता है। ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने लिखा। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए और नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। मेरे नबी को अल्लाह ने मुख्तार बना के भेजा है। बोलो जोर से, हाँ मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब तक़वियतुल ईमान वाला या सिराते मुस्तकीम वाला कुछ भी लिखता रहे, उसको बकने दीजिए, बकने दीजिए उसे। आप वो मानिए जो मेरे आला हजरत ने फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मेरे आला हजरत ने फरमाया है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और सुनिए, एक तारीख मैं आपको और दे देता हूँ, बस उसके बाद तकरीर ख़त्म की जाती है। अल खसाइसुल कुबरा लिस्यूती, बल्कि यूँ कह लीजिए किफ़ायतु तालिबिल लबीब फ़ी खसाइसिल हबीब अल मारूफ बिल खसाइसिल कुबरा लिस्यूती रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये पूरा नाम मैंने बता दिया किताब का, तो उसके अंदर लिखा हुआ है। और मोजमे औसत लित्तबरानी, वो मोजमे औसत मोजमे सगीर लित्तबरानी, दलाइलुन नबुवा लिल बैहक़ी, दलाइलुन नबुवा ले अबी नुऐम। इसमें भी है, 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 कुल में मौजूद है जो मैंने बताया। ठीक समझ रहे हैं आप? अब अल खसाइसुल कुबरा मेरे पास यही मौजूद है, ये मैं दिखा सकता हूँ, बाकी नहीं है। तो एक तो बहुत काफ़ी है ना, अल्लामा स्यूती की लिखी हुई किताब, उसके अंदर मौजूद है, बहुत है। तो उसमें क्या है ज़रा सुनिएगा। वो एक आराबी, बनी सुलैम का एक आराबी आया और कहीं शिकार करने के लिए गए हुए थे वो, तो शिकार करके लेकर के आए गोह, एक गोह शिकार करके लेकर के आए। अच्छा, सरकार के बारगाह में भीड़ लगी हुई थी लोगों की। इसने जब भीड़ देखा तो कहा कि ये कैसी भीड़ है। भीड़ को चीर करके अंदर आया, जब सरकार को देखा तो गलत बातें कही और कहा कि मैं आपको नहीं मानूंगा, मैं आपको नहीं मानूंगा, कोई माने ना माने मैं आपको नहीं मानूंगा। तब तक गोह भागने लगी। तो उस जो आया था अराबी ने कहा
میں ایک شرط پہ آپ کو مانوں گا, اگر یہ گوہ آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی لے آؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچانک بات بدلی اور اس نے کہا اگر یہ گوہ آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا. اچھا, جب اس نے یہ کہہ دیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کو مخاطب کیا. میرے آقا نے فرمایا فقال یا زب, نبی نے کہا اے گوہ. تب جانتے ہیں کیا لکھا ہے اس میں, فَتَكَلَّمَ الزَّبُّ بِكَلَامٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گوہ نے فصیح اور واضح عربی زبان میں کلام کیا اور کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, اے اللہ کے پیغمبر میں حاضر ہوں, اے جانے کائنات میں حاضر ہوں. کیا بات ہے. میرے آقا نے فرمایا من الذی تعبدہ, کس کی تو عبادت کرتی ہے, کس کی تو عبادت کرتی ہے. تو اس گوہ نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطنتہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنہ رحمتہ وفی النار عذابہ. میں اس کی عبادت کرتی ہوں. آسمان میں اس کا عرش ہے, زمین میں حکومت ہے, سمندر میں اس کا راستہ ہے, جنت میں اس کی رحمتیں ہیں, جہنم میں اس کے عذاب ہیں. اس خدا کی عبادت کرتی ہوں. جب اس نے یہ جواب دیا, ذرا دیکھیے گا, یہ کہتا ہے نبی ہماری طرح یہوں سے کہو کہ کونو پیڑ وڑ کے بلا دیکھے. ہاں, کسی پیڑ وڑ کو بلا کر کے دیکھے تو بتایا نہیں, اس کے گھر میں جب بلائے گا تو گھر والی نہیں آئے گی, پیڑ کیا آئے گا اس کے بلانے سے. ہاں, وہ آمینہ کا لال ہے. سبحان اللہ. مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں, ان کے خالی ہاتھ میں. نبی نے کہا کس کی عبادت کرتی ہے. اس نے بتایا کہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں. تب نبی نے پوچھا جب تو اللہ کی عبادت کرتی ہے تب اتنا اور بتا دے منانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب تو اللہ کی عبادت کرتی ہے تو اتنا اور بتا دے کہ میں کون ہوں. جب میرے آقا نے پوچھا اتنا بتا دے میں کون ہوں, تب اس نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ خاتم النبیین بن کر کے آئے ہیں. سبحان اللہ. اس گوہ نے آواز دیا آپ اللہ کے رسول ہیں. جب میرے نبی سے اس گوہ نے کہا آپ اللہ کے رسول, نبی مسکرائے اور نبی نے مسکرا کے اعرابی کو دیکھا. کیا خیال ہے, عقل آئی نہیں آئی؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. تب تک اعرابی نے کہا اشہد انک رسول اللہ حق. سبحان اللہ. میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول بن کر کے آئے ہیں, سچے رسول بن کر کے آئے ہیں. ذرا دیکھیے تو صحیح مسلمانوں, نبی پاور والے ہیں. نبی بلا دیں تو جانور بھی بولا کرتا ہے, نبی بلا دیں تو پیڑ بھی بولا کرتا ہے, نبی بلا دیں تو در و دیوار بھی بولا کرتے ہیں. اللہ نے اختیار دیا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے لوگو اگر اپنے جانوں پہ ظلم کر لو تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, سرکار کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی محبت میں جلائے, نبی کی محبت میں اٹھائے اور وہابیہ دیابنا سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, ان سے دور رہو بھیا, نہیں تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. اعلیٰ حضرت ایسے نہیں بولے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے, چوروں کی رکھوالی ہے. تب بہت ہوشیار رہنا پڑے گا کہ نہیں رہنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ان سے بچائے. کچھ لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو بڑا پکا ایمان والے ہیں, کہاں ہم ڈیمیج ہوں گے. کچھ نہیں ہوگا. ایک بات بتاؤں آپ کو, قرآن فرماتا ہے الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم.
अगर तुम ये देखो ऐसे लोगों को जो उन लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब है, तो समझ लो माहुम मिनकुम वला मिनहुम, वो दोस्ती करने वाले ना इन्हीं में से हैं ना इन्हीं में से हैं। अब बताओ, जब ना इधर के हुए ना उधर के हुए तो किधर के हुए? बर्बादी है बर्बादी। इधर उधर मत जाओ, दामन मुस्तफ़ा में आ जाओ। सुभान अल्लाह, मसलके आला हजरत में आ जाओ। मसलके आला हजरत ही हक मसलक है। दामन मुस्तफ़ा को थाम लो, सच्चे पक्के आशिक बन जाओ, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। नबी का दामन पकड़ करके इंशाअल्लाह ताला नबी के ग़ुलाम बन करके हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें मसलके आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। एक बच चुकी है। अच्छा अच्छा, तो जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा एक बार और कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। आला हजरत पे बोलने के लिए जहां तो अगर सोचो तो सोच ही खत्म हो जाती है कि उनको इतना इल्म कैसे था। सुभान अल्लाह। एक मौके पे तकरीर करते हुए आला हजरत ने फरमाया, मनम की इल्म बनी रूए बाजुअम नाजत, तहदीस नेमत के तौर पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये इमाम ने कहा था लखनऊ के एरिया में कहीं तकरीर करते हुए, मनम की इल्म बनी रूए बाजुअम नाजत, मनम की हमले मन शेर्रा बरंदाजत। सुभान अल्लाह। मैं वो हूँ। आज अगर हम दुर्रे मुख्तारियात कर लें, फतावा रज़विया आ जाए, बहरुल राइक आ जाए, कंजुल दकाइक आ जाए, नहरुल फाइक आ जाए, अशबाह नज़ार आ जाए, तो फूले नहीं समाते। हमें ये किताबें आ गई, हमें ये इल्म आ गया। सुनो, हमको अपने इल्म पर नाज है। इमाम अहमद रज़ा वो है जिस पर इल्म नाज करता है। इल्म जिस पर नाज करे उसे आला हजरत कहते हैं। इश्क मोहब्बत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान मुफ्ती आज़म, हुज़ूर जमाले मिल्लत। उसी घराने का शहजादा बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फैज़ान आला हजरत का बांट रहे हैं। एक बात बताऊं, फतावा रज़विया शरीफ में जिल्द नंबर 11 या 12 है, बहुत पहले का मुताला है, ठीक है, मगर कोई दिक्कत की बात नहीं। अब्दुल रहमान कादरी सामने खड़ा है, 11-12 दोनों ले आओ, दोनों में से एक ठू में हम बता देंगे, ठीक। और थोड़ी देर अगर आप रुक जाओ तो हम कन्फर्म कर देंगे बगैर देखे, ठीक है, कि इसी में, हाँ ठीक। ये अचानक ऑर्डर मिला है, इसलिए एकदम मुहतात गुफ्तगू करने की आदत है मेरी, लेकिन बेफिक्र रहिए, मुजस्सम मैं खड़ा हूं बोलने वाला, मैं जिम्मेदार हूं, ठीक है ना। फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत ने लिखा, एक सवाल किया गया आला हज़रत से कि हज़रत वो बाइबिल के बारे में आप क्या कहते हैं, ये ठीक है कि नहीं ठीक है? तो आला हज़रत बोले बाइबिल के बारे में मैं क्या बताऊं, तहरीफ शुदा बाइबिल, जिसने तहरीफ किया है मुहर्रिफ खुद ही नहीं जानता कि उसने क्या लिख दिया है, तो मुहर्रिफ ही नहीं जानता लिखने वाला, तो हम क्या बताएंगे कि क्या है। तो उसने कहा हजरत ये कैसे कि जो लिखेगा वो नहीं जानेगा। तो आला हजरत बोले मैं बताऊं? तो बोले हाँ बताइए। तो आला हजरत ने फरमाया सुनो, उसका पाठ नंबर इतना, सबक नंबर इतना, सतर नंबर इतना, लाइन नंबर इतना। जब पढ़ा तो हैरान रह गया, या अल्लाह कुरान पढ़ो रोज हो याद ही नहीं होता, मतलब हिदाया पढ़ो रोज हो पढ़ाओ याद ही नहीं रहता। ये आला हजरत सब पढ़े तो पढ़े, ये कब पढ़ लिए भैया, वो भी ऐसा कि सतर तक याद है, लाइन और सफा तो छोड़िए, सतर तक याद है। सतर नंबर इतना, लाइन नंबर इतना, पाठ नंबर इतना, उसमें ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बोले वो 8 साल की उम्र में बादशाह बना, ठीक है, वो 32 साल की उम्र में बादशाह बना। कितने साल की उम्र में? 32 साल की उम्र में बादशाह बना, 8 साल तक हुकूमत की, ठीक। उसके बाद मर गया। अब जरा फिर से, कितने साल की उम्र में बादशाह बना? 32 साल की उम्र में। कितने साल हुकूमत की? 8 साल। उसके बाद मर गया, तो 32 और 8 कई हो गए,
गणित ठीक है? 32 और 8 40, ठीक है ना? 8 साल तक हुकूमत की, उसके बाद मर गया और जैसे मरा, आला हज़रत कहते हैं उसमें लिखा है जैसे मरा फौरन तुरंत उसके बेटे को लोगों ने बादशाह बनाया, और बेटा जब बादशाह बना तो 42 साल का था। बेटा जब बादशाह बना तो 42 साल का था। तो आला हजरत बोले देख, इसका मतलब ये हुआ कि जब अब्बा 40 ही साल के हैं तो बेटा 42 साल का कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अब्बा के 2 साल पहले बेटा पैदा हुआ था। सुन रहे हैं आप? यही तो आला हजरत ने फरमाया था। वाह रे मेरे आला हजरत, जरा झूम के बोलो हाथ उठा के, सुभान अल्लाह। माना रब ने तुझको ये गाना, गाया आज़म ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हजरत, हम ये सुन्नत आला हजरत। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत बोले यही तो मैं कह रहा था कि जो लिखा वही नहीं समझ पा रहा है कि क्या लिख दिया है। अब या तो ऐसा सिस्टम होता हो वहाँ कि उसने कहा हो कि अब अब्बा थोड़ा आप रुक जाओ 2 साल, हम तो उससे पहले चला जी, वो करे बात तू आए हो। तो जब अब्बा रुक ही गए रहे तो ये आया कैसे? आए ये भी तो गड़बड़ है। तो वही तो आला हजरत बोले अब जरा देखिए ये आला हजरत है। बोले इसका मतलब ये हुआ जब वो 40 साल का था तो ये 42 साल का कैसे हो गया? ये फतावा रज़विया में पढ़ा तो हैरान रह गया मैं। सुभान अल्लाह। अब बगैर बेला रैब बेला शक ये मौजूद है, जर्रा बराबर शक को शुबह की। एक बार नहीं 10 बार मैं पढ़ता हूं एक चीज को, समझ गया? ये बताने का सिर्फ ये मकसद है कि आप शक में नो बिल्कुल करेक्ट, ठीक। अब जरा मेरी तरफ और तवज्जो कर लें। एक बात और बता दूं, उसी फतावा रज़विया में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? एक ने पूछा कि हजरत, सवाल हुआ कि फासिक जानवर जो हैं, कौआ खाना कैसा? क्या कौआ खाना कैसा? ठीक है ना? तो एक ने तो लिख दिया कि कौआ खाना हलाल है। हाँ, वो फासिक जानवरों में से है, अपने यहाँ इजाजत नहीं है, मगर उसने लिख दिया कि वो हलाल है। तो दलील क्या दिया? आला हज़रत फरमाते हैं दलील ये दिया कि वो दाना भी खाता है। बोले कि वो तो गंदा खाता है। तो बोले गंदा खाता है तो दाना भी तो खाता है। उसने जिसने लिखा, आला हज़रत उसकी बात कर रहे हैं फतावा रज़विया में, कि जिसने हलाल लिखा तो उसने दलील दिया। उससे कहा गया कि गंदा खाता है, तो उसने कहा गंदा खाता है तो दाना भी खाता है। तो जब दाना खाता है तो मुर्गी की तरह हुआ, मुर्गी की तरह हुआ, इसलिए हलाल। तो आला हज़रत ने उस पर कसते हुए ये फरमाया कि तो फिर कुत्ते को हलाल कर लो, जहां वो तो रोटी भी खाता है, वो तो चावल भी खाता है। अगर हिल्लत के यही दलाइल होंगे तो फिर वो रोटी चावल सब खाता है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, मसलके आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत हैं। एक मौके पर दलील देते हुए करीब 200 कलिमाते वलमा के दलाइल पेश कर दिए हजरत। 200 कलिमाते वलमा पेश किए दलाइल में आला हजरत ने। और 200 पेश कर देने के बाद आला हजरत ने फरमाया मैं कलम इसलिए रोक रहा हूं कि मैंने पहले 200 का दावा कर दिया था, वरना जो लिखा है वो कम है, जो दिमाग में है वो ज़्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दलील दिया वो कम है, अभी जो बाकी है वो ज़्यादा है, वो बाकी जो बाकी है वो ज़्यादा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगलों ने तो बहुत कुछ लिखा इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हमें
बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। याद रखिएगा, सुन्नियत की जान है आला हजरत, हक की पहचान है आला हजरत, हमारी शान है आला हजरत। हम आला हजरत के नाम पे कम कल भी मर मिटने के लिए तैयार थे और आज भी मर मिटने के लिए तैयार है। आला हजरत का जो एहसान है वो हम कभी भुला नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।